ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಕುಂಭಮೇಳವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಒಂದು ದೈವಿಕ ಅನುಭವ. ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಸಾಧು ಸಂತರು ನೀಡುವ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಾಧುಗಳ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಂಭಮೇಳವನ್ನು ಪ್ರತಿ 6, 12 ಮತ್ತು 144 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ 144 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 13ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳವು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಮೂಲವನ್ನು 8ನೇ ಶತಮಾನದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಲಿಪ್ಯಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಭಮೇಳದ ಸ್ಥಾಪಕ ಪುರಾಣವು ಪ್ರಾಚೀನ ದಂತಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ರತ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಮೃತದ ಪವಿತ್ರ ಹೂಜಿಗಾಗಿ ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಿದರೆಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ದುರಾಸೆಯ ರಾಕ್ಷಸರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಮೋಹಿನಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಹೊರತಂದನೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಾಗ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅಮೃತದ 4 ಹನಿಗಳು ಹರಿದ್ವಾರ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ನಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ 4 ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಈ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯು 12 ದೈವಿಕ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 12 ಮಾನವ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಮಹಾಮೇಳವನ್ನು ಪ್ರತಿ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿನ 4 ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿಗೊಂಡು ಅನುಗುಣವಾದ ನದಿಗಳು ವಿಶ್ವರೂಪದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಮೃತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧತೆ, ಮಂಗಳಕರತೆ ಮತ್ತು ಅಮರತ್ವದ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಥರ್ವರ್ಣ ವೇದ ಮತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕುಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 10 ಅಖಾಡಗಳು, ಅರ್ಧಕುಂಭ ಮತ್ತು ಕುಂಭಮೇಳವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕುಂಭಮೇಳವು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಕುಂಭ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿರುವ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಕುಂಭ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. हर हर महादेव। अब कहाँ से स्वामी जी? एमपी, मध्य प्रदेश। भगवान किसी के जरिए आप भी तक पहुँच सकता है। आशीर्वाद थोड़ा ऐसे मिलेगा, थोड़ा अपने महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गंगे जमुने सरस्वती तिरुमणि रेवा कावेरी। नमो नमः, नमो नमः, नमन नमः। जय गंगे जमुने सरस्वती तिरुमणि रेवा कावेरी नर्मदम नमः। आपका नाम? चंद्रमुखी। कहाँ से आप? झांसी। झांसी। चंद्रमुखी। क्या हुआ हाथ को? क्या हाथ ऐसे बचपन से? बचपन से हाथ नहीं है। पढ़ रहे हैं आप? जी। क्या पढ़ रहे हैं? जो पढ़ाई आती है, मैडम जो पढ़ाते हैं वही पढ़ रहे हैं। 7वीं क्लास में।
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಬಳಿ ಶ್ರೀ ಲೇಟೆ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಮಂದಿರವು ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಲಗಿರುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಾನ್ಜಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಲಗಿರುವ ಹನುಮಾನ್ ವಿಗ್ರಹದ ಕಾಲು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕನೌಜನ ರಾಜನು ವಿಂಧ್ಯಾಚಲದಿಂದ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತಂಗಲು ನಿಂತನು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಮುರಿದು ವಿಗ್ರಹವು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು. ರಾಜನು ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ನಂತರ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಿರಿ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ತಮ್ಮ ದುನಿಗಾಗಿ ಅಗೆಯುವಾಗ ಮರಳಿನ ಕೆಳಗೆ ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಂಡು ಪೂಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಸ್ಥಳವು ಶ್ರೀ ಲೇಟೆ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹನುಮಾನ್ಜಿಯ ವಿಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯ 7 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಇದೆ. ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದು ಹನುಮಾನ್ಜಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಗಂಗೆ ಬಂದು ಹನುಮಾನ್ಜಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. रामेश्वर का शिष्य हूँ मैं। रामगिरी नाम है मेरा। सत्यगिरी का नाती चेला हूँ और अभी सन्यास लिया है मैंने। ज्यादा दिन हुए नहीं है, ज्यादा मेरे को भी 15-20 दिन हुआ। वैसे तो बाबा जी तो बचपन का था हमें, लेकिन दीक्षा अभी मैंने ली है। कितना साल से आप? वैसे सन्यास तो मेरा तो मान लो 15 साल से है। 15 साल हो गए वैसे सन्यास तो मेरे लिए। 15 साल जी, लेकिन असली सन्यास अभी लिया है। दीक्षा भी ली थी, जो गुरु मंत्र लिया है हमने। अब कहाँ से? वृंदावन से है। वृंदावन जी। अब लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं एक महाकुंभ के हिसाब से? तो हम तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे दिखाना सबको कि सत्य क्या है। सत्य का विजय हमेशा हुई है, समझे ना। हम हो तुम में कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया जो कलयुग आ रहा है ना, कलयुग को हटाना है, समझे ना। समझे, कलयुग कैसे हटेगा? संत लोग ही उठाएंगे। और इस धरती संत लोगों पे रुकी पड़ी है, नहीं जब कलयुग तो बहुत बड़ा हो जाता अभी, समझे ना। धुना है कहीं ज्यादा पूजा करते हैं, ये गोरखनाथ का धुना है, इसी से सब कुछ है। धुना है, इसी में पूजा पाठ संत लोग करते हैं। जब कल्याण सब दुनिया का होता है, जो मंत्र जाप करते हैं, धुना में पूजा पाठ करते हैं, तो इसी का ही फल है, इसी का सबको फल मिलता है। आशीर्वाद किसी की परेशानी है, दिक्कत है, इसकी रक्षा से ही गोरखनाथ ने भी दी थी, क्या कहते हैं, रक्षा दी थी। जब भी रास्ते पे चल रहे पूजा पाठ का ये धुना का, और 24 घंटे ही धुना चलता है। ये संतों का ही मेला है। संत जैसे अपनी गुफा है, डेरा है, तपस्या करने के लिए भी अपने गुफा में बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, भोलेनाथ की तपस्या कर रहे हैं, समझे। यहाँ से आप जाएंगे वापस जंगलों में जाएंगे। उल्लू मनाली से। का नाम बाबा? रविंदर। आप कब से बाबा बन गए? 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। आप कहाँ से? उल्लू मनाली से। साइलेंस। ये कब से साधना आप कर रहे हैं? ये मेरे को 5 साल हो गया है। 5 साल हो गया है। हाँ। और ये हठ योग के अंदर आता है? हाँ। ये हठ है भगवान से आपकी। हाँ। मैं स्वामी रामदास श्री देवराहा बाबा मंच से। आप यह जो आश्रम देख रहे हैं, ये आश्रम ये श्री देवराहा बाबा मंच अखंड ज्योति के नाम से जाना जाता है। यह आश्रम विगत 18 वर्षों से यहीं पर स्थित है
18 वर्षों से यहाँ साधना चल रही है और विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर एक अखंड ज्योति माँ गंगा के गर्भ में प्रज्वलित की गई है, जो कि बाबा की स्मृति में जल रही है। और इस आश्रम में 4 महीने का अन्न क्षेत्र चलाया जाता है, सेवाएं की जाती हैं और यह आश्रम माँ गंगा के ठीक गर्भ में स्थित है। यहाँ बाढ़ के समय में 20-22 फीट जल आ जाता है और यही जीवन चलता है हम लोगों का। महाकुंभ खत्म होने के बाद ये इधर रहेगा? हाँ, महाकुंभ खत्म होने के बाद भी आश्रम यहीं रहेगा। जी जी जी, ये यहीं रहता ही है। बाढ़ के दिनों में भी यहीं रहता है जी। नाव लगी रहती है, लेकिन चूंकि अखंड ज्योत जल रही माँ गंगा की, उसकी सेवा निरंतर चलती रहती है। लोगों का कुछ संदेश दीजिए बाबा। सभी लोगों को सनातन धर्म का अवलंब लेना चाहिए, सभी लोगों को सनातन धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि विश्व में एकमात्र धर्म सनातन धर्म ही है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया की कामना करता है। मनुष्य मात्र के लिए सनातन धर्म आवश्यक है, जीव मात्र के लिए सनातन धर्म आवश्यक है, क्योंकि सनातन संस्कृति जो है सबका कल्याण चाहती है, सबका विकास चाहती है, सबको स्वस्थ देखना चाहती है। ऐसी अगर कल्पना किसी संस्कृति में है तो सनातन संस्कृति में है। इसलिए हर मनुष्य को जो है सनातन संस्कृति का अवलंब लेना चाहिए। हर हर महादेव। माँ गंगा मैया के तट पे जितने भी श्रद्धालुगण आए हुए हैं सभी का स्वागत अभिनंदन है। माँ गंगा माँ के गोद में आए और माँ गंगा के चरणों को स्पर्श करके अपने जीवन को धन्य बनाए। मैं श्री पंच आवाहन अखाड़ा स्वामी श्री 1008 कृष्णानंद पुरी जी महाराज आश्रम द्वारिका। मेरा नाम लोकेशानंद पुरी। मेरा आश्रम सिलवानी तट रायसेन जिले में रहता है। मेरी जन्मभूमि चित्रकूट की पास की है और सारे भक्तों को यही हमारा संदेह है कि जो भी भक्त सज्जन आते हैं कृपया सोशल डिस्टेंसिंग को उनको पहचाने, भागल दौड़ न करें और गंगा माँ के चरणों में आए हुए जितने भी श्रद्धालु हैं संतों का आशीर्वाद लें, संतों के चरणों पे आए और उनका आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को कृतार्थ एवं धन्यमयी बनाए। नाम मिटा है सनातन धर्म, न कभी मिटने वाला है। जिसने धर्म को मिटना चाहा वो खुद ही मिट जाने वाला है। हर हर महादेव। नमस्कार, जय श्री राम, जय गंगे, जय प्रयागराज। 144 साल का ये महाकुंभ भव्य और दिव्य, जिसमें पूरे विश्व से लोग आए हैं, यही सनातन धर्म की पहचान है। जो लोग सनातन धर्म को कोरोना वायरस, डेंगू और मलेरिया की उपाधि दे रहे थे, उन लोगों को देश के और विदेश में रहने वाले भक्तों ने इस महाकुंभ में आकर के उनको जवाब दिया है। माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस कुंभ को भव्यता और दिव्यता प्रदान की है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी की आभारी हूँ। और सबसे ज्यादा जो हमारे स्वच्छाग्रही हैं, जिन्होंने इस पूरे कुंभ को साफ सुथरा रखा है, उनको भी और मेला के लगे हुए सभी अधिकारी गणों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इस कुंभ को कल जिस तरह से पूर्णमासी के दिन भीड़ थी, लग रहा था जैसे मौनी अमावस्या हो, और अभी भी लोग आ रहे हैं। निवेदन करती हूँ कि आइए प्रयागराज क्षेत्र में जहाँ भी गंगा यमुना में स्नान करने का मौका मिले स्नान करिए। पूरा का पूरा मेला क्षेत्र ही प्रयागराज है। जो पूर्ण आपको त्रिवेणी संगम में जाकर मिलेगा वही आपको पूरे मेला क्षेत्र में मिलेगा। मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, ईश्वर से कामना करती हूँ कि हमारा जो ये सनातन धर्म सबको वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखने वाला देश, सबको विश्वास में लेकर के चलने वाली संस्कृति इस महाकुंभ में अपने आप में दिखाई पड़ रहा है कि पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का, पूरब का, देश का कोई कोना नहीं बचा
जहाँ से सारे लोग स्नान करने ना आए हों, संतों के दर्शन करने ना आए हों, आए संतों के दर्शन करिए और अपने पुण्य कमाइए, पुण्य के भागीदार बनिए। दीदी जी, आप बेंगलोर कब आ रहे हैं? बेंगलोर आएंगे, जल्दी आएंगे। बेंगलोर तो मैं आती रहती हूँ, कर्नाटक मेरे लिए तो मेरा घर जैसा है। जरूर आना दीदी। और उधर बेंगलोर में हमारा मल्लेश्वरम है। मल्लेश्वरम हाँ, एक शिव का टेम्पल बहुत फेमस। जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। एरिया का नाम ही रखा है मल्लेश्वरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नंबर दे के जाइएगा, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। बहुत बहुत जय जय गंगे मैया की। हर हर महादेव, हर महादेव। प्रयागराज तीर्थ की इस महानगरी में कुंभ के महाअवसर पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को आपके चैनल की ओर से और हमारे पूरे संत समाज की ओर से मंगल कामना है। यहाँ पर यह महापूर्ण कुंभ जो 140 वर्षों के बाद में लगा है, विश्व का सबसे बड़ा यह मेला, जिसमें 50 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पर इस त्रिवेणी में स्नान करेंगे और अपना जीवन मंगलमय हो, अपने जीवन भगवान के चरणों में जाए, ऐसी मंगल कामना तीर्थराज प्रयाग के चरणों में सब लोग कर रहे हैं। यह जो तीर्थ है प्रयागराज है, यहाँ अधिकतर हर वर्ष ऐसा कल्पवास का मेला लगता है और पुराणों के अनुसार, मानस के अनुसार हर वर्ष में यहाँ सनातन के लोग अखंड भारत से यहाँ आकर के सनातन धर्म के बारे में विचार विमर्श करते थे, क्योंकि हर वस्तु में कुछ न कुछ काफ़ी दिन तक जब उसको हम देखते नहीं हैं तो उसमें कोई न कोई विकृति आ जाती है। तो उसका संशोधन करने के लिए समय समय पर हम सबको विचार विमर्श और बैठकें करके उसको ठीक करना चाहिए। उसी तरह से धर्म में भी कुछ न कुछ विकृतियाँ आ जाया करती थी, तब हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि बैठ करके उस धर्म का संशोधन करना और एक नया और एक उपयोगी वह चीज़ लोगों के लिए बताया क्या करते। सत्संग के माध्यम से जीवन को कैसे सरल और सहज बनाते थे, ऐसे हमारे महात्मा लोग करते थे। और यही कुंभ का प्रयोजन है कि जीवन धर्म से जुड़ा रहे। यहाँ त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम है, सरस्वती, गंगा और यमुना। यह आध्यात्मिक भाव यह है, गंगा जो है वो भक्ति का प्रतीक है, यमुना मैया है वो कर्म का प्रतीक है और सरस्वती माँ है वो ज्ञान का प्रतीक है। व्यक्ति के कर्म दिखाई दे देते हैं कि हाँ इन्होंने ये कर्म अच्छा कर रहा है, या जैसे जो भी कर्म दिखाई देता है, और भक्ति भी दिखती है, परंतु ज्ञान व्यक्ति का दिखता नहीं है। जब व्यक्ति व्यवहार में आता है तभी उनका ज्ञान दिखता है, जब बोलता है तब दिखता है। इसलिए यहाँ कर्म स्वरूपा यमुना मैया दिख रही है और भक्ति स्वरूपा गंगा मैया दिख रही है, परंतु जो ज्ञान स्वरूपा सरस्वती मैया है, सरस्वती माता है, वह हर किसी को सामान्य दृष्टि से नहीं दिखती है। ज्ञान को देखने के लिए व्यक्ति को उसमें उतरना पड़ता है, तब जाकर के पता चलता है कि हाँ ये ज्ञान है। इसी तरह से ये त्रिवेणी संगम यहाँ पर अनवरत चल रहा है और जो कोई त्रिवेणी में यानी ज्ञान, कर्म, भक्ति, इन तीनों को अपने जीवन में उतारता है, ये त्रिवेणी में स्नान है। एक भौतिक रूप में यहाँ आकर के लोग स्नान करते हैं और दूसरे लोग जहाँ हैं, असंख्या करोड़ों ने अरबों की संख्या है मानव मनुष्य पूरे धरती पर, सब लोग तो यहाँ नहीं आ सकते हैं, पर वो लोग वहाँ रह करके भी त्रिवेणी संगम का लाभ ले सकते हैं। लाभ यही है कि अपने कर्म, अपनी भक्ति और अपने ज्ञान को परमात्मा के चरणों में समर्पण करना, यही त्रिवेणी स्नान का महात्म्य है और हर कोई इसको कर सकते हैं। भगवान प्रयागराज से हम लोग सभी समाज के लिए, सभी लोगों के लिए यही मंगल प्रार्थना करते हैं कि हम सबको प्रेम, सद्भाव और सद्विचार हमें दें, ताकि हम अपने बुद्धि के द्वारा सबका भला कर सकें, अपने मन, कर्म, वचन के द्वारा परमात्मा की भक्ति कर सकें, भगवान के बताए हुए मार्ग पर हम लोग चल सकें। प्रयागराज का यही संदेश है कि सब लोग जो जिस परंपरा से जुड़ा हुआ है, उस परंपरा के संतों को अनुयायी मान करके, उनको आदर्श मान करके, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और इसी से ही हमारा कल्याण होगा। सनातन धर्म की बड़ी विशेषता है कि यह वसुधैव कुटुंबकम, सप्त द्वीप वसुंधरा, भगवान शंकराचार्य ने कहा 7 द्वीपों वाली जो वसुंधरा है ये भारतवर्ष है
और भारतवर्ष में सारे लोग रह रहे हैं, तो सारे लोगों के लिए जो कल्याण कामना है, कल्याण की भावना है, वह अपने सनातन धर्म में ही की गई है। जैसे आप सब लोग सुनते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब लोग सुख से रहें, सब लोग शांति से रहें, किसी के पास रोग नहीं हो, शोक नहीं हो, और किसी के पास अगर रोग शोक हो तो हम प्रार्थना करते हैं कि वह दुख शोक रोग दूर हो जाए। यह हिंदू सनातन धर्म की विशेषता है और प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना ये करते हैं। हम लोग इस मनुष्य योनि में आए हैं तो हम भी गीता रामायण के अनुसार अपने जीवन को चलाते हुए सबका भला हो, सब लोग सुख से शांति से जी करके अपने अपने परंपरा के अनुसार, देश के अनुसार, काल के अनुसार अपनी साधनाएं करें और अपने जीवन का कल्याण करें। पुनः प्रयागराज तीर्थराज के चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं कि यहाँ आने वाले प्रत्येक प्राणी को आप सद्भाव, सद्विचार, प्रेम दीजिए ताकि वह अपने जीवन का परम कल्याण कर सकें। आपके इस चैनल के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामना है कि आप यहाँ से, यहाँ के संतों की प्रसादी इस वाणी को पूरे जगत में प्रसारित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। बोले तीर्थराज प्रयाग की जय। हमारा छोटा सा परिचय, ब्रह्मधाम तीर्थ आसोत्रा, गुरुदेव श्री खेतेश्वर अन्न क्षेत्र सेवा शिविर, खेताराम जी महाराज जी ने ब्रह्मा जी का अवतार लेकर के ब्रह्मा जी के मंदिर की प्रतिष्ठा की और प्राण प्रतिष्ठा। उन्होंने जैसे ही मंदिर बना अपना प्राण छोड़ दिया, मंदिर में ही आहूत कर लिया। फिर उसके बाद में उनकी कृपा प्रसाद से जो हमारे सदगुरुदेव जी हैं, ब्रह्मा गायत्री पीठाधीश्वर श्री श्री तोसाराम जी महाराज, जो हमारे गुरुजी हैं, और हम गुरुजी के आदेश के अनुसार सारे ये कार्यों को संचालन कर रहे हैं। मेरा नाम वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराम जी महाराज हैं, जो मैं अपनी गुरु परंपरा के अनुसार तीसरी पीढ़ी में हूँ। और बस सबके लिए मंगल कामना है, आप सबके लिए मंगल कामना है।